So, very good afternoon, one and all. I am Sushant Rajendra Bargat, a research scholar, PhD student, and a physics faculty. So, the summary of the last lecture, we started the chapter that is the surface tension, which is the one of the important chapter for state board point of view, for JEE, NEET, or any competitive exam like MHT CET. So, half portion of this chapter we already completed, and some 3 to 4 articles also remain. So today we are going to cover this 4 article, that is nothing but the expression for drop and bubbles. We call it as Laplace law, angle of contact, then rise of liquid in a capillary action, capillarity, capillary action. These are the 4 major topics today we have to cover. Okay, so please pay attention. See, in last lecture we started with the concept of surface tension. What is the definition of surface tension? I already told that for better understanding surface tension you must know some basic concept like what is intermolecular force. Intermolecular force क्या होता है? Intermolecular force के type, cohesive force, adhesive force. Okay, the force of attraction between similar type of molecules known as the cohesive force. The force of attraction between dissimilar type of molecules known as the adhesive force, like a force of attraction between water and water, edible oil, petrol and petrol, okay, milk and milk. These are the cohesive force. And the force of attraction between a glass surface and water, oil and water, okay. These are the example of adhesive force. Okay, after that we discuss the intermolecular force, we discuss range of molecules, okay. प्लीज पे अटेंशन. सो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स के टाइप क्या होते हैं, अडेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है. फिर उसके बाद हमने ये बोला था रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है. तो कंसीडरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ सेंटर और एक इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ जो हमने किया था, दैट इज नथिंग बट द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस and the radius of that sphere of influence known as the range of molecules, और वो होता है 10 to the power minus 9 meter. Okay, after that we discuss the surface film. Okay, nothing but the topmost layer of the surface. I am just recollecting the last lecture, those who are absent in last lecture or not attend the lecture, for those people. Okay, then what is surface film and behavior of liquid on the basis of surface, on the basis of molecular theory we discussed. Then we discuss a surface energy, nothing but the potential energy which is due to work done. Okay, that work done stored in the form of energy, and that energy is nothing but the surface energy. We discussed in last lecture in very detail. Then we discussed the surface tension, nothing but the force per unit length. Remember one thing, when we are talking about a force per unit length, in some cases that length becomes circumference. Okay, especially in terms of drop and bubbles. Today we are going to discuss that. वो हम अभी पढ़ेंगे आज लेक्चर में. जब मैं बोल रहा हूँ टेंशन, सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वो लेंथ कुछ नहीं, कभी कभी आपका सरकमफेरेंस भी हो सकता है सर्कल का, सॉरी बबल का या ड्रॉप का. ओके, दैट इज द लेंथ. And after that we establish a relation between surface energy and surface tension, और वो relation था हमारा, we called surface tension as a T is equal to dW upon dA. Okay, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था हमारा, T is equal to dW upon dA, that is the work done per unit area, and T is nothing but the tension, surface tension. कुछ बुक में surface tension को S भी डिनोट किया जाता है, so प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, कभी कभी सरफेस टेंशन के लिए टी और कभी कभी एस भी रहेगा,
तो डोंट कंफ्यूज इन दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर द लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन भी उसका किया था। टुडे वी आर गोइंग टू कवर 4 मेजर टॉपिक। आज हम 4 बड़े टॉपिक जो कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें से एक टॉपिक है हमारा लैपलास लॉ। हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर अ ड्रॉप और बबल। हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रॉप एंड बबल। ओके, ये फिर दूसरा टॉपिक हमको आज जो लेना है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट तीसरा टॉपिक है हमारा आज का कैपिलरिटी, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी एंड कैपिलरी एक्शन। ओके, और चौथा टॉपिक है हमारा राइज इन लिक्विड, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, राइज इन लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। ओके, ये 4 टॉपिक हमको आज डिस्कस करना है। तो हम लैपलास लॉ से और एक्सप्रेशन फॉर ड्रॉप और बबल यहां से कवर करेंगे। उसमें एक सब टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी एंड कंटेमिनेशन एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। मींस इंप्यूरिटी के कारण, कंटेमिनेशन के कारण या टेम्परेचर के कारण सरफेस टेंशन में कुछ चेंजेस होता है क्या, सरफेस टेंशन बढ़ता है या कम होता है, यह हमको देखना है। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन भी पढ़े थे सरफेस टेंशन की। उसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताए थे डिफरेंट, एक टूथपेस्ट वाला, एक डिटर्जेंट वाला और मॉस्किटो एक्स वाला। ओके, सो ये था हमारा कल तक का टॉपिक। और आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा लैपलास लॉ for a spherical membrane. So please pay attention while lecture is going on. Please unmute करा। Bubble, that bubble is nothing but the soap bubble. Okay, yeah, while I'm writing in that case. Okay, so what happen, होता ये है नॉर्मली कि जब हम वाटर ड्रॉप की बात करें या बारिश की बूंदों की बात करें, तो जब बारिश की बूंदे गिरती है या हम वाटर ड्रॉप, इफ यू कंसिडर वाटर ड्रॉप, you see that, let us consider this is a water drop. Inside of that water drop there are so many number of water molecules. इसके अंदर बहुत सारे water molecules हैं। ओके, और ये जो आउटर लेयर है that is nothing but the act as a elastic membrane। इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसी एक्ट होती है। वो सरफेस टेंशन के कारण वो वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रख दिए इनसाइड दैट मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा हूं मैं, इसके समझने की कोशिश कीजिए। पहला हम जो डिस्कस कर रहे, नथिंग बट द लिक्विड ड्रॉप। ओके, लिक्विड ड्रॉप की हम बात करें, लिक्विड ड्रॉप की अगर हम बात करेंगे तो ये इनसाइड देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स। हम आज लिक्विड मॉलिक्यूल्स को वाटर ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और ये बहुत सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, दैट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज होल्ड बाय इलास्टिक मेम्ब्रेन ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये जो आउटर लेयर है नथिंग बट द इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो कि वाटर मॉलिक्यूल से ही या वाटर कंटेंट से ही बनी हुई है। तो अगर मैं इसका आउटसाइड प्रेशर कंसीडर करूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज AO आउटसाइड, एंड मैं उसका इनसाइड प्रेशर कंसीडर करूं तो PI। ओके, सो ड्यू टू सरफेस वी ऑब्जर्व दैट inside pressure is greater than outside pressure।
इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा होता है। एमएससीईटी के एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था दैट P सी दिस इज द लेयर, अगर मैं इसको लेंस जैसा ट्रीट करूं तो एक सरफेस मेरा कॉनकेव हो गया, एक सरफेस मेरा कॉन्वेक्स हो गया। तो जो मेरा इनसाइड सरफेस है वो है मेरा कॉनकेव, लाइक केव लाइक कॉनकेव, और मेरा आउटसाइड जो है वो है कॉन्वेक्स। ओके, वो है मेरा कॉन्वेक्स। सो द इनसाइड प्रेशर इज नथिंग बट द कॉनकेव एंड आउटसाइड प्रेशर इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स। सो तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि आउटसाइड प्रेशर इज लेस देन इनसाइड प्रेशर। क्यों इनसाइड ज्यादा होगा? क्योंकि वो मेम्ब्रेन के कारण वो मॉलिक्यूल्स बाउंड है एक में के साथ, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होने की वजह से, वाटर वाटर होने की वजह से उसने होल्ड करके रखा है। अडेसिव फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ओके, और सरफेस टेंशन के कारण ये जो मेम्ब्रेन क्रिएट हो गई है इसके वजह से, दैट्स व्हाई। ओके, सो Pi इज ग्रेटर देन PO। तो हम ये Pi माइनस, इसको ऐसे बोल सकते हैं, चेंज इन प्रेशर इज नथिंग बट द Pi माइनस PO, Pi माइनस PO, इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाएगा। अभी हमारे को एक्सप्रेशन निकालना है ड्रॉप के लिए, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड और व्हाट इज द प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। ओके, इसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं तो हम सरफेस टेंशन, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE नीट और MHDCD, वी हैव सो लेस टाइम टू प्रिपेयर, तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूले होना जो याद रहे या रिकॉल हो, उसके वजह से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट्स में समझाने की कोशिश करता हूं। तो बात ये थी हमारी कि Pi इज ग्रेटर देन PO। we know that हमारा फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, यहां पे लेंथ इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस। फोर्स पर यूनिट लेंथ की जब मैं बात करता हूं तो T इज इक्वल टू F/L। थोड़ा साइड में रफ वर्क करता हूं मैं यहाँ पे। वी नो दैट प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो F इज इक्वल टू PA, यहाँ पे जो प्रेशर है नथिंग बट द डेल P, और जो एरिया है यहाँ पे नथिंग बट द दैट होल स्पीयर। ओके, और सर्कम, सो T इज इक्वल टू F/L। तो मैं इसको ऐसा यहाँ लिखूंगा, क्या कैन आई राइट, T इज इक्वल टू डेल P इंटू A, एंड ये L नथिंग बट द सर्कमफरेंस। क्या है मेरा सर्कमफरेंस। अगर मैं इसको सर्कमफरेंस बोलूं तो आएगा डेल P इंटू व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है उसका पूरा πr²। ओके, और सर्कमफरेंस क्या है 2πr, सॉरी कैपिटल R। यही डायग्राम को मैं फिर से यहां पर बना रहा हूं। ये हमारा रेडियस है, ये हमारा आउटसाइड प्रेशर, ये हमारा इनसाइड प्रेशर। ओके, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। ओके, और मुझे पता चल रहा है कि Pi माइनस PO इज नथिंग बट द डेल P, ये मेरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मेरा पाई गेट कैंसिल, एक R मेरा है कैंसिल हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू क्या हो गया डेल P अपॉन 2R, सॉरी 2। तो मुझे फॉर्मूला निकालना था उसके प्रेशर के लिए, तो मेरा फॉर्मूला एक R भी बचा है यहाँ पे। ओके, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा डेल P इज नथिंग बट द 2T अपॉन R। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ लिक्विड ड्रॉप, मीन्स एक्सप्रेशन फॉर अ लिक्विड ड्रॉप। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। लेट मी रिपीट वंस, एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लैप्लास लॉ और एक्सप्रेशन फॉर अ लिक्विड ड्रॉप ये हम निकाल रहे हैं। बात यह है, जब मैं लिक्विड ड्रॉप जब बोल रहा हूं यहाँ पे, तो these are the so many number of liquid molecules hold inside the elastic membrane of water। तो मेरा आउटसाइड प्रेशर PO, इनसाइड प्रेशर PI, ये मेरा रेडियस है स्फीयर का या वाटर ड्रॉप का। Pi इज ऑलवेज ग्रेटर देन PO, ये MCQ है, मैं आपको बताया MST CET एग्जाम में आया था।
दैट प्रेशर कॉनकेव, ये सरफेस अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं तो ये मेरा कॉनकेव सरफेस है और ये मेरा कॉन्वेक्स सरफेस है। ओके, तो प्रेशर इनसाइड ये पी आई है, ये पी ओ है। ओके, तो पी कॉनकेव प्रेशर इज ग्रेटर देन अ कॉन्वेक्स प्रेशर। ओके, अभी मुझे फॉर्मूला निकालना है इसके चेंज इन प्रेशर के लिए। तो फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरह से होगा। लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन की फॉर्मूला निकाला था। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो T इज इक्वल टू F बाई L। बट मैं अगर F की बात करूं तो डेल P इंटू ए होता है, तो F की जगह डेल P इंटू ए लिखा। A इज नथिंग बट द एरिया पाई आर स्क्वायर जो कि सर्कल है, सरकमफरेंस उसका 2 पाई आर जो कि लेंथ है, पाई पाई आर आर गेट कैंसिल, तो मेरा बचता है T इज इक्वल टू डेल P इंटू आर अपॉन 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग डेल P इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक और डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर ए लिक्विड ड्रॉप, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ड्रॉप। फिर मेरा इसमें दूसरा टॉपिक है, हमें सोप बबल के लिए उसको पढ़ना है, एक्सप्रेशन फॉर सोप बबल। ओके, मैं इसको 2 सेकंड 30 सेकंड के अंदर भी बता सकता, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, और मैं लिख के भी बताऊंगा आपको कि कैसा था। सी, जब मैं लिक्विड ड्रॉप बोलता हूं तो यहाँ पे एक ही सरफेस है। जब मैं सोप बबल की बात करता हूँ, सबने देखा है सोप बबल। ओके, इमेजिन कर सकते हो, तो सोप बबल को 2 सरफेस एरिया होता है, इनसाइड एज वेल आउटसाइड। हम उसको जब एनलार्ज करते हैं, नॉर्मली ये हमारा ओरिजिनल है, समझ के चलो आर। जब मैं इसको सम वर्क प्रोवाइड हो रहा है, वहां पे वर्क डन हो रहा है, तो ऑब्वियस है ये थोड़ा बढ़ जाएगा। इतना तो नहीं बढ़ता है, बट मुझे कुछ करना है, मुझे दिखाना है इस पे, इसलिए मुझे थोड़ा बड़ा एरिया दिखाना पड़ेगा। आई हैव टू शो सम मोर एरिया, तो ये इतने से बढ़ गया, तो टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल रेडियस क्या हो गया, आर प्लस डेल आर। ओके, इनसाइड प्रेशर मेरा पी आई है, आउटसाइड प्रेशर फिर से पी हुई है यहाँ पे। ओके, 2 सरफेस होने के कारण वहां पे इन केस ऑफ सोप बबल देयर आर 2 फ्री सरफेस। इन केस ऑफ सोप बबल there are 2 free surface। अगर यहाँ पे जब मैं उसको 2 फ्री सरफेस बोलता हूं तो ऑब्वियस है वहां पे टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होगा, देयरफॉर टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज नथिंग बट द 2 टाइम 8 पाई, अभी वो बढ़ गया है, आर डेल आर। ओके, उसके बाद एंड वर्क डन बाय फॉर स्ट्रेचिंग दिस एरिया इज नथिंग बट द ट्वाइस द 8 पाई आर डेल आर। तो ये हो जाएगा मेरा 16 पाई आर डेल आर। ओके, 16 पाई डेल आर। सो बात ये थी हमारी वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, क्योंकि बढ़ रहा है, वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर इज क्या होगा, हमारा फॉर्मूला पता है, वर्क डन क्या होता है, इज नथिंग बट द प्रेशर इनटू एरिया। सो प्रेशर क्या है, डेल पी इंटू 4 पाई आर डेल आर। एम आई राइट, 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर, ये हमारा फॉर्मूला। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 16 pi r del r is equal to del p into 4 pi r square del r। del r कैंसिल, एक r यहाँ पे कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 4 जा। ओके, तो बचा क्या यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या बचा डेल p इंटू एक r। मुझे फॉर्मूला निकालना है p के लिए, तो मेरा एक t भी बचा है ना,
कहाँ गया, एक्सप्रेशन फॉर आर, ओके, इंटू टी, ओके, तो ये 4t, देयरफॉर फॉर्मूला डेल पी इज इक्वल टू 4t अपॉन आर। एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए मैं जब बोला था लिक्विड ड्रॉप हैविंग द ओनली वन लेयर, सो यहाँ पे 2t अपॉन आर आया, और जब सोप बबल के हम जब बोल रहे 2 सरफेस एरिया है उसका, तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा डेल पी इज इक्वल टू 4t अपॉन आर। दिस इज अ वेरी इजी टू रिमेंबर, बट ये कैसे आता है अगर उसको मुझे बताना है तो मैं बोलूंगा सोप बबल हैविंग द 2 फ्री सरफेस। अगर उसको 2 फ्री सरफेस है, जो लोग लास्ट लेक्चर में थे उनको वर्क डन, कैसे वर्क डन होता है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे सरफेस एनर्जी बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, ओके। तो फॉर दोज पीपल इट इज वेरी इजी। तो टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया 2 इंटू 8 पाई आर डेल आर, वर्क डन क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 8 पाई आर डेल आर इंटू टी, वर्क डन इज नथिंग बट द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। और वर्क हमारा फॉर्मूला भी था टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी ए, हमारा फॉर्मूला भी था कल हमने निकाला था, वर्क डन इज इक्वल टू टी डी ए, ओके। तो ये हिसाब से क्या होगा, टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी ए, ओके। ये फॉर्मूला था हमारा इसका। तो वर्क डन इज इक्वल टू टी डी ए, ये एरिया है, तो टेंशन इनटू एरिया, तो वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर इज 4 डेल पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर। ये दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड एक नीट का क्वेश्चन था जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था, हमें फॉर्मूला डिराइव करना है उसके लिए, ओके। आई एम गोइंग टू रब दिस, इसको मैं रब कर देता। अभी हमको फॉर्मूला पता है 4t अपॉन आर फॉर बबल एंड 2t अपॉन आर फॉर ड्रॉप। ओके, लिक्विड ड्रॉप के लिए हमारा फॉर्मूला आया था अभी जो हमने निकाला था, टू टी अपॉन आर ड्यू टू ओनली सिंगल सरफेस एरिया, और दूसरा आया था हमारा यहाँ पे 2 सरफेस एरिया होने का, ओके। तीसरा टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है, मैं हेडिंग लिया एक्सप्रेस प्रेशर इन सम अदर कंडीशन। एक्सप्रेस प्रेशर इन सम अदर कंडीशंस, यहां पे मैं लिख देता डेल पी इज नथिंग बट द पी आई माइनस पी ओ, ओके, रिमेंबर दैट। अभी केस ऐसा है, समझ के चलो, लेट अस कंसीडर दिस इज अ 1 ड्रॉप एंड दिस इज अनदर ड्रॉप। दिख ही रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, दिस इज अ स्मॉल ड्रॉप, दिस इज अ बिग ड्रॉप, ओके। मैं स्मॉल ड्रॉप का रेडियस बोलता हूँ स्मॉल आर, और बिगर ड्रॉप का रेडियस बोलता हूँ कैपिटल आर, ओके। इफ एनी हाउ दिस 2 bubbles get collide each other and form a new bubble or new drop, ओके। एक काम करते हैं, ड्रॉप के लिए कंसिडर करते हैं, तो इसका इनसाइड प्रेशर पी आई हो गया, आउटसाइड प्रेशर पी ओ, इसका भी पी आई, इसका पी ओ, ओके। अगर इस हिसाब से हम कंसिडर करते हैं, अगर इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो गया, ये छोटा बबल और ये बड़ा बबल, ओके।
और एक बड़ा बबल फॉर्म हो गया। ऑब्वियस है, छोटे बबल का रेडियस स्मॉल आर था, बड़े बबल का रेडियस कैपिटल आर है। तो बड़ा बबल फॉर्म हो जाएगा या बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें तो पता है जब लिक्विड ड्रॉप 2T अपॉन आर आता है और सोप बबल के लिए 4T अपॉन आर आता है। बट अगर दो बबल्स या दो ड्रॉप्स मर्ज होते हैं और एक बिग ड्रॉप तैयार होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा। ऑब्वियस है, जब मैं इसकी बात करूंगा, इसको मैं बोलता, इसका जो चेंज इन प्रेशर है मेरा, उसको बोलता पी आर और इसको बोलता पी कैपिटल आर। ओके, अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला देखूंगा तो ऑब्वियस है मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, पी आर माइनस पी ओ इज नथिंग बट द स्मॉल के लिए 4T अपॉन स्मॉल आर। ओके, ये हो गया इसके लिए। इसकी अगर बात करूं तो होगा पी कैपिटल आर माइनस पी ओ इज नथिंग बट द 4T अपॉन कैपिटल आर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया इसके लिए। ओके, अभी मुझे इसको मर्ज करना है, तो इन दोनों का अगर मैं मर्ज करूंगा तो मुझे इसका फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 40 कॉमन है और यहाँ पे 1/r सेपरेट निकलेगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा इस ड्रॉप के लिए तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा पी आर माइनस पी कैपिटल आर इज इक्वल टू 40 मेरा कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे 40 अगर निकला तो 1/r माइनस 1/, कैपिटल आर। ओके, लेट मी रिपीट वंस। हम क्या बोल रहे हैं, ये नीट में आ चुका हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन फॉर अ प्रेशर इन सम अदर कंडीशन, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर मीन्स लैप्लास लॉ इन सम अदर कंडीशन मीन्स अगर ये कोई छोटा ड्रॉप है और ये कोई बड़ा ड्रॉप है, ये दोनों मर्ज होते हैं। ओके, यू कैन टेक एनी ओके ड्रॉप और बबल। अगर मैं यहाँ पे 40 अपॉन आर ऑब्वियस है सोप बबल का है, तो मैं बबल के हिसाब से इसको ट्रीट करूंगा। अगर ये बोलेंगे ड्रॉप है तो मैं इसको ड्रॉप के हिसाब से ट्रीट करूंगा। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे जब मैं पी आर बोल रहा हूँ तो ये स्मॉल के लिए मीन्स चेंज इन प्रेशर फॉर पी आई माइनस पी ओ इज नथिंग बट द पी आर हियर। और मैं अगर इसकी बात करूंगा तो ये होगा पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू पी कैपिटल आर। ओके, फॉर दिस बबल। ओके, अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से अगर फॉर्मूला निकालूं तो आएगा 40 अपॉन आर और इसका मैं अगर निकालूं तो आएगा 40 अपॉन कैपिटल आर। ओके, ये हो गए दो फॉर्मूले। अगर ये दोनों बबल्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के कारण क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगे। जब ये मर्ज हो जाएगा तो आएगा पी आर माइनस पी आर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो यहाँ पे 40 कॉमन है तो मैं यहाँ से 40 कॉमन ले लूंगा, फिर बचेगा क्या, यहाँ पे 1/r और यहाँ पे 1/ कैपिटल आर। सो दिस फॉर्मूला वी गेट। दिट इज अ वेरी इजी बट नीड्स सम ट्रिक्स ओके दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये ट्रिक्स आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, उसके हिसाब से अपन निकल लेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिपेंड ऑन दिस टू फैक्टर। तो ये हमारा टॉपिक था, लैप्लास लॉ हम इसको बोलते हैं, और एक्सप्रेशन फॉर बबल और एक्सप्रेशन फॉर सोप, एक्सप्रेशन फॉर सोप बबल और एक्सप्रेशन फॉर ड्रॉप ओके इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर। ये हमारा आज का पहला टॉपिक था। फिर उसके बाद हमारा इसके ऊपर कुछ फॉर्मूलेज है जो मुझे आपको देना था कल लास्ट लेक्चर में, बट आई फॉरगेट दैट। ओके, नाउ आई एम गिविंग सम फॉर्मूला एंड ट्राइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। I am writing here on this side. Force due to surface tension of different body. Surface tension of डिफरेंट बॉडी। ये भी शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूले हैं जो कि कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करके आए हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन रिमेंबर इट, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। ओके, सो हमारा पहला फॉर्मूला इसका फॉर नीडल,
ओके। नीडल हैविंग अ लेंथ, मैं यहाँ पे लिख भी देता, नीडल को लेंथ जैसे ट्रीट करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा हमारा F इज इक्वल टू 2LT। सी T इज द सरफेस टेंशन, T क्या है, सरफेस टेंशन। फिर दो बॉडी ऐसी है जैसे कि हॉलो डिस्क